Very good afternoon, dear students. This is class of Dheeraj sir from LMB Public School, Brahmapuri, and we are studying social science of standard 7. Students, as we have started understanding democracy, the chapter belongs to civics, and we have seen some concepts of democracy, definition, features of democracy, ancient democracy, how democracy evolved, that we have already studied. What are the incidents, what are the past happenings responsible to develop democracy, or to uh, the incident which responsible to add the values in democracy, जैसे कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, renaissance in Europe, a medieval period. This we have already studied, the incident which causes to develop democracy. Okay, world wars, Russian revolution, why democracy, why democracy means why people are looking for democracy, because it has unique characteristics or the features that the other forms of government not having such features to develop human beings. Okay, so that is why people love democracy. उसके बाद we have studied about the key features of democracy, जिसमें decision mechanism, equality we have already studied. Now we are going to study justice and human dignity. Justice and human dignity are the key features of democracy. Justice and human dignity. Justice and human dignity. So dear students, I have already explained you judiciary. No. I have explained you legislature, executive, and judiciary was the remaining topic. I did not cover in last video, but I will explain you later on live classes. But still, what is judiciary, that you have to keep in mind. Judiciary, it is a third organ of government. Third organ of government, जैसे कि there are three organs of government by which democratic government works. Legislature, which is a lawmaking body, okay. Executive, the body which implements the laws made by the legislature, जैसे कि president, prime minister and his ministry, understand, means council of ministers. Okay, and then judiciary का काम क्या है? Judiciary checks the laws which made by the legislature either in spirit of constitution or not. मतलब कि जो लॉ बनाए हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू स्पिरिट और द गाइडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, वो चेक करने का काम जुडिशरी करता है. इवन सपोज द राइट्स विच गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज वायलेटेड by the government, then any individual can approach the court for the justice, understand. So that is for judiciary is made up. मतलब कि to punish the guilty, जो गुनहगार है उनको पनिश करना, एंड जो विक्टिम है, जिनके साथ गुनाह हुआ है, उन जो गुनाह का शिकार हुए हैं, उनको क्या करना? जस्टिस ऑफर करना. ये जुडिशरी का काम है. इवन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट मीन्स मेड बाय लेजिस्लेचर इन द फॉर्म ऑफ और इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू गाइडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ये भी चेक करने का काम जुडिशरी का होता है. एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑर्गन, अंडरस्टैंड. वी हैव द सिस्टम ऑफ जुडिशरी on three stages: subordinate courts, state courts, that is high court, and the supreme court, understand. Subordinate courts, high court and supreme court. So supreme court is at the country level, means at the central level. Our supreme court is located in New Delhi. High court, for one state there is a high court, understand. So कुछ ऐसे स्टेट्स है
जिनको कॉमनली एक हाई कोर्ट है, जैसे कि हमारा गोवा और महाराष्ट्र के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है। समझ में आई बात? जिसका जो एक बेंच होता है वो केरला के लिए है, और फिर महाराष्ट्र में कुछ ऐसे सिटीज़ है जैसे नागपुर, मुंबई, इनमें भी हाई कोर्ट के बेंच बैठते हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे जुडिशियरी में। बट दैट यू टू कीप इन माइंड, देर आर देर इज अ थर्ड ऑर्गन जुडिशियरी विच इज़ इंडिपेंडेंट दैन टू अदर ऑर्गन्स, जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्यों ये इंडिपेंडेंट है? क्योंकि फ्री एंड फेयर मैनर में वो जस्टिस ऑफर कर पाए, इसलिए उनको इंडिपेंडेंट रखा गया है, उनके ऊपर कोई प्रेशर ना बने रहे इसलिए। तो जस्टिस जो है, दिस इज द की फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, क्योंकि जस्टिस के मतलब जस्टिस यानी कि न्याय, अगर किसी के ऊपर अन्याय होता है या उसके राइट्स का वायलेशन होता है, देयर मस्ट बी अ सिस्टम बाय विच वी गेट द जस्टिस। तो यहाँ पे जुडिशियरी है, और जस्टिस इज द मेन स्पिरिट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, द जुडिशियरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि लोगों के ऊपर अन्याय हुआ तो जो डेमोक्रेसी का कोई काम ही नहीं है। समझ में आई बात? क्योंकि पहले तो हमने ऑलरेडी फॉरेन गवर्नमेंट्स की गुलामी को महसूस किया था, सहन किया था, प्रेशर सहन किया था ब्रिटिशों का। तो हमको ये समझ में आता है कि द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर कंट्री के पीपल हैप्पी है, उनको जस्टिस मिल रहा है, तो वो डेमोक्रेटिक का रिस्पेक्ट करेंगे एंड दे ऑल्सो लव टू बी पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन, राइट? It protects the freedom and rights of the people of democratic country, protects the freedom and right of the people of democratic country। democratic country में एक system of people होता है, government होता है, group of people का एक government बनता है। तो वो गवर्नमेंट या कोई भी इंडिविजुअल लोगों को डोमिनेट करेगा या फ्रीडम को रिड्यूस करेगा या राइट एंड प्रिविलेजेस को एंजॉय करने के लिए नहीं देगा, तो समझ लीजिए कि दैट इज़ नॉट ए गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ पीपल एंड राइट ऑफ द पीपल को ऑलवेज प्रोटेक्शन मिलता है। वी कैन गो टू द कोर्ट्स, वी कैन अप्रोच द कोर्ट्स एंड वी कैन डिमांड फॉर द जस्टिस। तो ये सिस्टम, ये डेमोक्रेटिक कंट्री का कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री का एक अच्छा स्पिरिट है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी लोग एक समान है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटस, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है, सब लोग एक समान है, सब लोगों को ह्यूमन बीइंग कंसिडर किया जाता है, और उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके आदर को, सम्मान को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी करना है वो जस्टिस जो है, मतलब जुडिशरी जो है वो करेगा। सो दिस इज द स्पिरिट फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेटिक नेशन। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू सीक एंड रिसीव द जस्टिस। सबको अधिकार है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट दिया है कि इट प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो राइट एंड फ्रीडम, तो हमारे कौन से राइट्स है, दैट आई वांट टू शो यू। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफर्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू freedom of religion, means any religion we can follow which we love and which we want to follow. Cultural and educational rights, हमको शिक्षा लेने का अधिकार है। इवन हमारे स्क्रिप्ट को, समझो कोई मुस्लिम है तो उर्दू स्क्रिप्ट को वो प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। हम लोग मतलब सभी लोग अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डेंस जो भी कल्चरल वैल्यूज़ है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब होता है इफ़ वी फील दैट और फंडामेंटल राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड, सो वी कैन गो टू द कोर्ट फॉर द जस्टिस। दिस इज कॉल्ड एज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ओके, राइट टू इक्वालिटी, एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ और आई ऑफ लॉ। राइट टू फ्रीडम,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों को है। फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अगर हमारे ऊपर कोई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ जा सकते हैं, बोल सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स एनी रिलीजन वी कैन फॉलो। सो दीज आर द बेसिक राइट्स। इफ इसमें से कोई भी एक राइट वायलेट होता है या डिनाई करता है गवर्नमेंट, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, या एनीबडी इफ रीजन फॉर द वायलेशन ऑफ दिस राइट्स, तो हम लोग उसके खिलाफ जा सकते हैं। ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ अधिकार है। सो दिस इज द मेन स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फ्रीडम। सो दिस इज द जस्टिस। नाउ ह्यूमन डिग्निटी, आई होप यू अंडरस्टूड। ये सारी चीज़ें हम लोगों को डेमोक्रेसी में मिलती है। नाउ ह्यूमन डिग्निटी, अगर हम ह्यूमन डिग्निटी की बात करेंगे, ह्यूमन डिग्निटी यानी कि सभी ह्यूमन बीइंग हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। सभी को क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सभी एक समान है, सभी को कुछ राइट्स है, उनको कुछ प्रिविलेजेस इंजॉय करने के लिए मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन डिग्निटी कहलाएगी। दैट इज एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि सब लोग जो है वो सम्मान के पात्र है, चाहे वो छोटा हो, आप मतलब चिल्ड्रेन हो, या ओल्ड एजेस पीपल हो, या कोई रिच हो, या कोई पुअर हो, या कोई किसी भी कास्ट का हो, या कोई भी कौन से भी कलर का हो, सभी लोग एज अ ह्यूमन बीइंग दे डिजर्व रिस्पेक्ट। दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन डिग्निटी। अगर कोई एक्यूज्ड भी है, कोई गुनहगार भी है, तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग उसके जो भी राइट्स है उसको वो मिलने ही चाहिए। अगर कोई गुनाहगार भी है या कोई गरीब है, तो उनको हम उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे, इनजस्टिस करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिग्निटी रिफर्स टू द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ ह्यूमन बीइंग इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट मतलब सम्मान के पात्र होना। सो डेमोक्रेसी स्टैंड्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, कि सब लोग इक्वली ट्रीट हो, तभी डेमोक्रेटिक नेशन डेवलप हो सकता है। दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। समझो कि कोई भी एक समाज को या कोई भी एक समाज के वर्ग को हम साथ लेकर नहीं चलते, हमको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हमारा नेशन डेवलप होगा। देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर क्वालिटी एंड जस्टिस फॉर एवरीवन, सॉरी there is a respect for equality and justice for everyone, irrespective of his or her status or achievements. We don't have to keep in mind regarding any of the person of his status or achievements, and then we will offer him equality and justice. ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई अगर बहुत बड़ा है इंसान, उसके अचीवमेंट्स को देखकर हमको उनको रिस्पेक्ट ऑफर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके अचीवमेंट्स की, उनके स्टेटस की तो कदर करना ही है, बट बीइंग अ ह्यूमन पहले हम लोगों को ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। एवरीवन एंजॉयज द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो वन इज फॉलोड टू वायलेट द राइट्स ऑफ अदर्स। सब लोगों को अपने अपने अधिकार एंजॉय करने का डेमोक्रेसी में अधिकार है, बट किसी के अधिकारों को छीनने का अधिकार नहीं है। अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स एंड की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। गोइंग टू summarize this chapter, what actually we have studied in this chapter. The principles and key elements of democracy promote human values and form the basis of a just society, यानी कि हम लोग सोसाइटी में सब एक समान है। These principles and elements rank democracy above any other form of government, and that is why this is the form of government which stands above the rank than any other form of government. यानी कि कोई भी दूसरे forms of government से डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है, सबसे ऊपर है। The provision made by the legal system and the constitution and the special schemes launched by the government help in promoting equality of opportunities and in realizing the spirit of democracy. जो भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए स्पेशल स्कीम्स, लीगल सिस्टम
जो भी देता है हम लोगों को, उससे हमको पता चलता है कि ये वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यहाँ पे सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है। पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ द पीपल। पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन, देखो कोई भी सिस्टम या कोई भी काम जब तक कब तक सफल नहीं होगा जब तक हम लोग सब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एक साथ नहीं आएंगे। जैसे पैंडेमिक जैसे सिचुएशन में भी हम लोग बहुत अच्छे से अपने देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर हेल्पिंग टू ईच अदर, गवर्नमेंट ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ द पीपल, पीपल ऑल्सो सपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट। ओके, सो ये सारी चीज़ें करने से ही हम लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यू को ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे। Participation and cooperation of the people and recognition of the values of democracy is a necessary condition for the success of this welfare policies and programs। तो जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट हमारे लिए बनाता है तो वो तभी सक्सेस होंगे जब हम उसमें कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। सो दिस इज़ द थिंग ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज़ द थिंग ऑफ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें सब लोगों को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है। सब लोगों के पार्टिसिपेशन से ही हम इसको और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ओके, तभी इसको पीपल्स रूल हम लोग कहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का अर्थ वही होता है कि पीपल्स रूल। ओके, पीपल्स रूल, डेमोक्रेशिया, डेमो और क्रेशिया वर्ड से ये शब्द बना है, आप लोगों को पता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज पीपल्स रूल। So I hope you understood the topic which I have delivered today, and next period we will cover the exercise, or in live class we will discuss on the topics we have understood. So thank you very much. Keep studying and keep enjoying. Take care.